So assalamu alaikum to all of you. This is lecture number 15. After this, I'll give you lecture number 14. It is very important because you have midterm exams very soon, means from next week. And next week on Wednesday, I think you will have your midterm paper on Wednesday. Today is Wednesday, and next week on Wednesday, inshallah, you will have your paper. Today is 14th, I think, 14th. So remember, next week on Wednesday, you will have your midterm exams. I have my class with you or my sessions with you on Wednesday. तो Wednesday को ही इंशाल्लाह आपका पेपर लूँगा, and that will be at the university, right? I'll come to the university and I will conduct your paper. It will be of 1 hour uh, paper. So today I'm going to give you a revision of the poetics and an apology for poesy. Some students were worried about this and they were asking me so many questions. So I thought that I should have a session with you so that if you have any questions regarding these two critics, you may ask. Remember, these both are very important critics. Aristotle was a philosopher, but his master, his teacher Plato, criticized poetry in his uh, concept of ideal state. So, in response to that criticism, Aristotle defended poetry, and he defended poetry against his teacher's attack. And if you remember, in the very beginning, I gave lectures on what criticism is, and I also gave lectures about the particular era in which Plato and Aristotle they both were living. What were the circumstances? What were the conditions of that particular time, and why Plato criticized poetry in his ideal state, and how Aristotle defended. So these things I will not give you in the midterm. These things may be asked in the final exams. ठीक है, फाइनल एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, लेकिन मिड टर्म में आपके पास 25 मार्क्स होंगे जिसको आपने कवर करने होंगे. तो आपसे मुख्तसर आपको शॉर्ट आंसर्स आपसे पूछा जा सकता है. आई मे गिव यू 5 क्वेश्चंस and I can see your concepts, how your concepts are cleared. So what is poetics? You can see over here. Have you gone through the lectures? आप लोगों ने lectures को सुने या आप लोगों ने videos देखी और उन्हें सुनी? And I've also remember I've also provided you handouts, soft copies of handouts, and very soon inshallah maybe I will come on Friday to university and I may provide you the hard copies of uh, Aristotle's Poetics, Sidney's Apology for Poetry, and Johnson's Preface to Shakespeare, and some others as well. I may come with these handouts on Friday, and I will keep these handouts with Miss Faryal, and you can collect these things from Miss Faryal. तो इसको कॉपी करवा के आप मुझे रिटर्न कर दीजिए, उनको रिटर्न कर दीजिएगा मिस फरियाल को. So have you gone through these lectures? Yes. Yes, sir. तो Some क्या, तो आप लोगों ने क्या इसके हवाले, what do you understand by poetics? If you remember in the very beginning, I told you one very important thing that L- LC means literary criticism. It covers almost all the main subjects. It is related to literature and criticism related to literature. We are doing it. अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना यह है कि सर आप वहाँ नहीं मतलब ये आप अगर फिजिकल क्लास लें तो एक्चुअली आई वांट टू टेक क्लासेस ओवर देयर, बट द प्रॉब्लम इज दिस दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन नॉट बी कॉल एट वन टाइम. जिस तरह पहले हो सकता होता था ऐसा अभी हो नहीं सकता. ठीक है, तो प्रॉब्लम और मजबूरी ये आन पड़ी. तो जिसके पास सहूलत अच्छी है या वो मैनेज कर सकता है ऑनलाइन, तो उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन ले लें ताकि हमारा सिस्टम चलता रहे. अल्लाह ताला करे, all the things become normal soon
लेकिन as I told you that this is something that we have all around the world, and after vaccination things can become normal. उससे पहले अगर हम कोशिश करेंगे तो नुकसान बड़ा ना हो जाए. So what is the poetics? The poetics of Aristotle has a long and famous life, and that life began about 330 BC. BC means before Christ. When Christ was not born, means हज़रत ईसा इस्लाम के पैदा होने से पहले का दौर था जिसमें प्लेटो और एरिस्टोटल वगैरह ये लोग थे. So this was written before 330. 330 is the time period before Christ. And remember, Aristotle and Plato, they both were Greek philosophers. They both were Greek philosophers, and their names are very famous. You must have read them in political science as well, because they have given their theories. प्लेटो ने तो अपनी एक थ्योरी दी थी आइडियल स्टेट की, in which, you know, he banned, or he, you can say, um, banned all the poets. उसका कहना यह था कि in his ideal state, when poets come or enter, they should be given a lot of respect. But after giving a lot of respect, they should be kicked off. Why? Because he said that poets are possessed. उसका ये मानना था कि poets are very uh, capable people, but unfortunately they are not good for the states. रियासत के लिए ये मुफीद नहीं होते. Why? Because they are possessed. ये possessed होते हैं. वो कहता है जब इनके इनको अल्हामी कैफियत होती है तब जाके ये अपना काम करते हैं. Otherwise they cannot follow the orders or orders of any human beings, and that is why they are not good for the states. They are not good for any country. And remember, it was a time when, according to Plato, poets were not doing their jobs properly. They were just misguiding people. They were just, making people having wrong wishes, wrong desires. They were just, making people having डे ड्रीम्स. जैसे हम कहते हैं ना कि दिन में ख्वाब दिखाना और लोगों को मतलब ये कि बुराई की तरफ लेके जाना, नौजवानों को बिगाड़ना. So these things were being done by the poets according to Plato that time. As we can see in today's life as well, that poets are not doing their job in a proper manner. Poets mean, remember, songs, in the form of songs, national songs, in the form of, hymns, naat, elegies. These all are the forms of poetry. तो आजकल के अगर आप गाने सुने तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि when we listen to songs, so what happens to us? We go into another world which is a dream world, which has nothing to do with the reality. And sometimes we become so much emotional, and those emotions are better to be suppressed. ये वो emotions है और ये वो feelings है जिनका दबे हुए रहना बेहतर होता है. So poets, through their poetry, they arouse those emotions, and then later on those emotions create lots of problems in the society. So its modern life begins in Italy. Italy at the end of the 15th century, जब रेनेसा इटली से शुरू हुआ तो तब इसकी मॉडर्न लाइफ स्टार्ट हुई. सिंस देन इट हैज बीन ट्रांसलेटेड एंड एडिटेड एंड एनोटेटेड इन एवरी सेंचुरी इन मेनी लैंग्वेजेस, और बहुत सी जबानों में इसका तर्जुमा हुआ, जैसे अंग्रेजी का तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं. It is the first work of literary criticism written by a philosopher, Aristotle. And he did not write this one. It is said that he used to deliver lectures, and his students noted down the lectures. और उनमें से वो सा lecture जो है वो ज़ाया हो गया, यानी कि वक्त के साथ साथ वो we lost many lectures. So the lectures which we have preserved is in the form of the poetics. So there are 26 chapters in poetics. 26 chapters हैं poetics में, and the main focus of the poetic is on Greek tragedy. कौन सी tragedy है? Which Greek tragedy. remember, Greek साथ में लाजमी लगाइएगा, because there is a difference between Greek tragedy and English tragedy. So Greek tragedy you will find from the very Yes, sir. to the end. Greek is not there. आपने HBO के कुछ आपने देखे होंगे, वहाँ पे फिल्म्स वगैरह आती है, तो जिसमें आप देखिएगा जस्ट लाइक द ममी, एंड देयर आर सम अदर मूवीज. मूवीज आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ड्रामास. मूवीज जो है ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ ड्रामास कहलाते हैं.
तो उसमें आप देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक ग्लूमी एटमॉस्फेयर, यानी कि गमगीन जो होता है ना माहौल, वो आपको मिलेगा। और आपको उसमें कोई कॉमिक एलिमेंट नहीं मिलेगा। यू फाइंड एनी कॉमिक सीन। मेल जेंडर इज गिवन मोर प्रायोरिटी। मेल जेंडर इवन इज वर्शिप ओवर देयर, स्पेशली व्हेन इफ दे आर वॉरियर्स। अगर वो जंगजू हों तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब इज्जत दी जाती है। बाज़ औक़ात तो उनकी माज़अल्लाह वर्शिप की जाती है, इबादत करना शुरू कर देते हैं वो लोग। ग्रीक तो आपको पता है ना कि हर उनके तरह तरह के, दे डोंट बिलीव इन वन गॉड, दे बिलीव इन मैनी गॉड्स। कोई भी जाके कुछ भी करतब दिखा देगा तो उसको भी वो गॉड मानना शुरू कर देते हैं। सो ग्रीक ट्रेजिडी। नाउ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इंक्लूड द डिस्कशन ऑन ट्रेजिडी एंड इट्स एलिमेंट्स। जो आपको इसके अंदर डिस्कशंस मिलेंगे, जो टॉपिक्स है वो क्या है? डिस्कशन ऑन ट्रेजिडी एंड इट्स एलिमेंट। ट्रेजिडी क्या होता है और उसके एलिमेंट्स क्या है? थ्योरी ऑफ इमिटेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लॉट। इमिटेशन क्या होता है? ये तो आपको गालिबन मैंने बताया भी था कि ट्रेजेडी का क्या उसने कहा था एरिस्टोटल ने, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा बस लाजमी। तो ट्रेजेडी की एंड इट्स एलिमेंट्स, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या होता है? सिग्निफिकेंस ऑफ प्लॉट। प्लॉट की अहमियत क्या है? तो प्लॉट के बारे में एरिस्टोटल क्या कहता है? आइडियल ट्रेजिक हीरो कौन होता है, और एक आध और टॉपिक्स हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी इन दीज 26 चैप्टर्स। एरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी एज अ काइंड ऑफ इमिटेशन, और ट्रेजेडी को एक किस्म का इमिटेशन कहता है। तो इमिटेशन की भी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। He says the poet represents life as seen through the medium of his own personality, यानी कि जिस तरह से पोइट जो है देखता है चीज़ों को, उसी तरह से वो चीज़ों को प्रेजेंट करता है। दैट इज वाई द पर्सनैलिटी ऑफ अ पोइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। If a poet is a religious bent of mind, then he will see things from a different perspective. If a poet is a worldly type of person, that is called secular, then he will see things from a different. It is the personality of a poet as well that is also very important. And remember, uh, for poetry, according to Wordsworth and even according to Aristotle, idea is everything. An idea can be found anywhere, means everywhere. There are ideas everywhere. किसी भी चीज़ पर आप पोएट्री लिख सकते हैं, किसी भी पोएट्री का सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसके लिए बेशुमार चीज़ें, हर जगह आपको कोई ना कोई आइडिया मिल सकता है। So according to Aristotle, he means a poet creates something new. Poet creates something new after imitating, he creates something new. फिर वो मजीद बताता है कि लिटरेचर इज द आर्ट विच इमिटेट्स लाइफ इन वर्ड्स। लिटरेचर क्या चीज़ है? जैसे पेंटिंग है, इट इमिटेट्स लाइफ इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, कलर्स। सो लिटरेचर इज समथिंग दैट इट इज, लिटरेचर भी एक आर्ट है, एंड दिस आर्ट इमिटेट्स लाइफ इन वर्ड्स। तो वर्ड्स के जरिए ये लाइफ को इमिटेट करता है। तो ये चीज़ें आपको पोएटिक्स में मिलेंगी। अब उनको हम थोड़ा वन बाय वन लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक एट देम। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज ट्रेजेडी? अब ट्रेजेडी क्या है ये तो आप लोगों को समझ लें, आप याद रख लें अपने पास फॉर दिस सेमेस्टर एट लीस्ट। व्हाट इज ट्रेजेडी? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस। रिमेंबर, दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। एक तो चीज़ ये क्लियर होगी कि ट्रेजेडी क्या है भाई? ट्रेजेडी जो है इमिटेशन इमिटेशन है किसका? एन एक्शन। फिर क्या है? वो एक्शन कैसा होना चाहिए? सीरियस, सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। बात समझ आ रही है आपको? सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो एक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए? सीरियस होना चाहिए, इसमें कॉमिक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट होना चाहिए, इट शुड बी अ कंप्लीट, मींस इट मस्ट हैव अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। उसका बिगिनिंग भी हो, मिडल भी हो और एंड भी हो। आपको एक मिसाल में देता हूँ कि देयर इज अ फिल्म नेम टाइटैनिक। I don't know whether you have seen Titanic or not. It was released in 1998. So that movie began from the end. आप अगर उस मूवी को थोड़ा सा लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देखिएगा उस मूवी का जो शुरुआत होती है वो आखिर से होती है। अब आप सोचेंगे सर ये क्या कह रहे हैं आप, कैसे आखिर से होती है? हाउ डू यू रिप्लाई इट टू मी? कैन एनीवन रिप्लाई टू मी? यस सर। कैसे? सर वो जो फीमेल होती हैं जी जी, वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर हाँ देती देखे हैं ना, जिनके ग्रैंडसन।
या वेरी गुड। आपने देखा होगा जब वो स्टोरी जब वो शुरू करती है तो उस वक्त ही बूढ़ी खातून होती है, शी इज एन एल्डरली वुमेन, और जब कहानी खत्म होती है उस वक्त भी वो बूढ़ी खातून ही होती हैं। बात समझ आ रही है? तो वो मूवी शुरू भी एंड से होती है और खत्म भी एंड पे होती है, उसमें उसका बिगिनिंग नहीं होता, मिडिल हो जाता है। ठीक है, it does not have a beginning but it has a middle. Why? Because that woman is telling about her past, she is telling and she is the part of the movie, और वो उस मूवी का हिस्सा होती है, वो इस प्ले का हिस्सा होती है। इसीलिए हमें जब देख रहे थे तो हमें यही, जब आखिर में when she finishes, when the movie finishes, so we find the woman sitting or standing at the same place and she is of the same age. It means that that movie began from the end and it ended in the end, and it does not have a beginning नहीं है। ठीक है, so here in Greek tragedy it must have a beginning, प्रॉपर बिगिनिंग होना चाहिए, मिडल भी होना चाहिए और एंड भी होना चाहिए। और फिर ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ इतना हो कि हमें याद रहे, ऐसा ना हो कि हम देख रहे हैं, हमने मूवी देख लिया, फिल्म देख लिया, ड्रामा देख लिया और हमें पता नहीं शुरू में क्या हुआ था। जैसे आजकल के ड्रामे हैं, जिनकी इंडियन ड्रामों की मिसाल दे रहा हूँ, जिनकी 100 200 किस्तें हैं। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि पहली किस्त में क्या होता, यू विल नेवर बी एबल टू टेल देम, इवन यू कैन नॉट टेल देम what happened in 25th episodes. Similarly, there are some Pakistani dramas, they are also unfortunately they are also copying Indians, they are also copying Indian dramas. So they have, there are number of episodes, इतने सारे episodes हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि शुरू में क्या हो रहा है। तो according to Greek tragedy, according to Aristotle, there should be a certain magnitude। ठीक है, कंप्लीट का तो आपको बता दिया कि उसका प्रॉपर बिगिनिंग मिडल और एंड होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर बिगिनिंग मिडल और एंड होना चाहिए। सीरियस का मतलब उसमें कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, कॉमिक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल सीरियस एक्शन होना चाहिए, संजीदगी वाला माहौल होना चाहिए। एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड मींस इट मस्ट हैव लेंथ दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, दैट वी शुड रिमेंबर। इतनी मतलब उसकी लेंथ हो कि हम उसको, हम जब मूवी खत्म या प्ले खत्म हो जाए तो वी मस्ट रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। इन लैंग्वेज एम्बेलिश विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट। लैंग्वेज एम्बेलिश मतलब कि लैंग्वेज उसकी हाई फाई होनी चाहिए, इट शुड बी ऑफ हाईली एलिवेटेड लैंग्वेज। जो भी आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, यानी कि जैसे फिगर ऑफ स्पीच में आपके पास जो भी डिक्शन है उसका अच्छा इस्तेमाल करके, इट शुड बी ऑफ हाईली एलिवेटेड लैंग्वेज। फिर क्या कहते हैं, द सेवरल काइंड्स ऑफ बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले। तो इन द फॉर्म ऑफ एक्शन भी हो सकता है। उसने कहा है कि नैरेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ हिस्से जो होते हैं वो नरेट कर दिए जाते हैं। इट इज सेड about some other by some critics that there are some scenes which cannot be performed on the stage. Remember, it was a time when dramas used to be performed on the stage. आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी है, तो क्या होता है कि स्टेज, it is very difficult to perform drama or any play on the stage. Why? Because over there is no margin of error, यानी कि गलती की गुंजाइश नहीं होती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? स्टेज में गलती की गुंजाइश नहीं होती, जो भी चीज़ें सब दिख रहा होता सामने, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ काइंड ऑफ, यू कैन से, फीलिंग और इमोशन इन द हार्ट ऑफ द ऑडियंस। लेकिन आजकल जदीद टेक्नोलॉजी में क्या है, आप टीवी पर देख रहे होते हैं तो स्टेज डायरेक्टली आपको नज़र नहीं आता, टीवी पे वही चीज़ आती है जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि ड्रामा जो होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्शन होगा, नैरेटिव नहीं होगा। बहुत सी चीज़, जैसे मिसाल के तौर पर डेथ सीन है, या किसी ड्रामे में कोई ऐसा सीन दिखा दिया जो गैर अखलाकी, जैसे हम कहते हैं कि किसी के साथ गलत हुआ, किसी खातून के साथ गलत हुआ, या किसी के साथ मतलब जिंदगी लाइफ में तो बहुत सी अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ें भी होती है। तो अच्छी चीज़ें तो बंदा दिखा सकता है, लेकिन बहुत सी बुरी चीज़ें वो नहीं दिखा सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उनको नरेट किया जाता है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, नॉट ऑफ नैरेटिव, थ्रू पिटी एंड फियर, इफेक्टिंग द प्रॉपर प्रोगेशन ऑफ दीज इमोशंस। फिर क्या कहते हैं, और फिर जब आप उसको देखें तो यू मस्ट हैव पिटी एंड फियर बोथ फीलिंग्स टुगेदर। ऐसा ना हो कि आपको पिटी, यानी कि आप पिटी की फीलिंग आ रही, फियर डर नहीं, आपको हमदर्दी तो हो रही लेकिन डर नहीं लग रहा, या आपको खौफ तो आ रहा लेकिन हमदर्दी नहीं हो रही। इन दोनों में से एक फीलिंग आएगी तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द पर्पस ऑफ ट्रेजेडी, एंड ट्रेजेडी विल बी अनसक्सेसफुल। तो वो फिर ट्रेजेडी फेल हो जाएगी। मैंने कहा यू मस्ट हैव pity and fear both feelings, and then what will happen, तो उसका जो अल्टीमेट सोल्यूशन होगा उस ट्रेजेडी कामयाब कैसे होगी, थ्रू द प्रोगेशन ऑफ दीज इमोशंस। तो ये कहलाता है प्रोगेशन ऑफ दीज इमोशंस मींस कैथारसिस। प्रोगेशन ऑफ दीज इमोशंस मींस वो जो इमोशंस है वो आपके बाहर आ जाएंगे और आपका जो
है ना क्या कहते हैं, फीलिंग्स बाहर आ जाएंगे एंड यू विल फील रिलैक्स. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड catharsis, right? So this is the definition of tragedy that you must remember. और आपने देखा इसके अंदर क्या क्या चीजें थी जो मैंने अंडरलाइन की, these are all important. ये भी एक चीज है, in the form of action, not narrative. Any question? किसी को सवाल से कुछ पूछना हो? Yes, if there is anyone who wants to ask me anything regarding tragedy, definition of tragedy. Purgation of emotion को हाँ, जरा दोबारा purgation, explain या करें please. purgation of emotions means it is related to catharsis. देखिए catharsis को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफाइन किया है. You must have read my handout, plus you must have listened to the lecture that purgation theory of allopathic, and then ethical theory, and then purgation purification theory. So catharsis basically means when, for example, किसी का कोई इंतकाल कर जाता है, एक तो तकलीफ देखते हैं हम लोग, वी फॉर एग्जांपल आर डियर वंस और नियर वंस, पेरेंट्स हो गए या सिबलिंग्स हो गए या किसी की औलाद हो गई, ठीक है, बच्चे. अब अगर आपने उसे तकलीफ में देखा और काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली फील रिलैक्स when that person dies. Why? Because you have seen that you're that loving person suffering from that terrible disease or anything else for a long time, and it was incurable, और वो काबिल इलाज भी नहीं था. तो जब उसका इंतकाल होता है तो हमें इतना मतलब उस पर तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की होती है. फिर हम लोग जो है डेफिनेटली कहते हैं जैसे अल्लाह ताला चाहेगा इंशाल्लाह वैसे ही होगा, अल्लाह ताला हो उसके नसीब में ये, और हम लोग मुतमईन हो जाते हैं. लेकिन अगर किसी का कोई लविंग और डियर वन जो है वो अचानक इंतकाल कर जाता है, जैसे कोई ट्रैफिक हादसे की में, या किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, या इस तरह की अचानक डेथ हो जाती है, जिसको हम ट्रेजेडी भी कहते हैं, ठीक है, उस सूरत में आप देखिएगा बाज़ औक़ात देयर आर पीपल हु डू नॉट वीप और क्राई, दे बिकम्स स्टिल, वो स्टिल हो जाते हैं. तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि दैट पर्सन शुड क्राई, स्पेशली मदर्स हो गई या सिस्टर्स होगी, तो डॉक्टर सेज दैट पर्सन शुड क्राई, अदरवाइज it will have a very damaging effect on the brain of the on her brain. तो वो कहलाता है कथारसिस, कि वो उसका उनका कथारसिस होना चाहिए, कि वो जो अंदर फीलिंग्स उसका बाहर आना ज़रूरी है. अगर बाहर नहीं आएंगी तो क्या होगा, that will definitely damage the internal system. इसी तरह से जब आप ट्रेजेडी देख रही होती हैं and when you see certain play and you see certain scenes, tragic hero के साथ जो जाती हो रही होती है, जो मसाइल हो रहे थे, life is definitely in life we don't have normally poetic justice. life में हमारे पास poetic justice अक्सर नहीं होता. तो क्या है कि हमारे पास इनजस्टिस बहुत ज़्यादा होती है. जब आप उसको प्ले को देख रहे होते हैं, उसमें आपको याद रखिएगा पिटी एंड फियर, दीज बोथ फीलिंग शुड बी देयर. जैसे आपने किंग लियर प्ले अगर आपने देखा होगा शेक्सपियर का, तो उसमें आपने देखा होगा कि 3 बेटियां होती हैं, 3 में से एक जो होती है वो बहुत वफादार होती है, 2 जो होती हैं वो जो दे आर नॉट फेथफुल टू देयर फादर. सो व्हाट हैपेंड, देयर फादर लिसन्स टू बोथ ऑफ देम, एंड देयर फादर किंग लियर जो है वो जो बहुत सिंसियर होती है उसको वो इग्नोर करता है, लेकिन आखिर में वो सिंसियर डॉटर भी उनके लपेट में आ जाती है. सो व्हाट हैपेंस दैट वी हैव पिटी फॉर दैट सिंसियर डॉटर. साथ में फियर भी हमारे पास, पिटी और फियर दोनों फीलिंग्स आती है. तो उससे क्या होता है कि व्हेन द प्ले एंड्स वी स्टार्ट वीपिंग, and through weeping or through tears what happened that we get release of tension, we get release of bad feelings. So this is called catharsis. तो इसके मुख्तलिफ, किसी ने इसको प्यूरिफिकेशन कहा है कि आपका जो है अंदर से प्यूरिफाई हो जाता है, किसी ने कहा कि परगेशन, कि आप अंदर से आपकी सफाई हो जाती है, किसी ने कुछ कहा. इसकी मिसाल और एक तरह से भी देता हूँ कि जैसे किसी के दाना निकल आता है, फोड़ा निकल आता है, फोड़े के अंदर जब तक पस रहेगा तो वो क्या होगा, वो तकलीफ देगा, लेकिन जब पस निकल जाता है तो वो क्या कहलाता है, परगेशन. दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन और परगेशन. अब वो आपके बॉडी से जब निकल आया तो इट इज कॉल्ड कैथारसिस एंड यू विल फील रिलैक्स. यस, Thank you sir, yes got it. सो शैल वी प्रोसीड. तो ये इसको लाजमी याद रखिएगा. Okay, then nature of tragedy. So if you talk about nature of tragedies, you can see the objects of imitation, medium of imitation, and the manner of imitation. Objects क्या है जिनको imitate करें, medium क्या है तरीकाकार, medium जिसके जरिए, और manner क्या है किस तरह से.
द ऑब्जेक्ट इमिटेटेड बाय ट्रेजेडी वो क्या है, एक्शन है. रिमेंबर ऑब्जेक्ट क्या है, एक्शन है. और पीस ऑफ लाइफ ऑफ सीरियस इंटरेस्ट, कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड हैविंग मैग्नीट्यूड, ये भी आपको बता चुका हूँ. लॉन्ग इनफ टू डायरेक्ट द चेंज इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द ट्रेजिक हीरो, सीरियस इनफ टू बी मोर देन ट्रिवल. रिमेंबर ट्रेजिक हीरो इसमें बहुत अहम, ट्रेजिक हीरो की भी क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. द मीडियम एम्प्लॉयड इज लैंग्वेज. मीडियम क्या है, वो लैंग्वेज है. एम्बेलिश विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, जो भी आप, जिससे हम कहते हैं ना रफ लैंग्वेज, मिर्च मसाला आप डाल सकते हैं वो डालिए. अल्फाजों में भी इस तरह की चीज़ होती है. यू कैन यूज good words and charming and all such things through figure of speech, melody and poetic diction. तो थर्ड चीज क्या है, द मैनर, तरीक़ेकार किस तरह से ऑफ इमिटेशन इज ड्रामेटिक. ये ड्रामाई अंदाज होना चाहिए. द स्टोरी इज टोल्ड नॉट बाय नरेशन बट एसेंशियल कैरेक्टर्स शुड एक्ट देम आउट. तो एसेंशियल जो कैरेक्टर्स हैं वो उसको परफॉर्म करें. सो दिस इज द नेचर ऑफ ट्रेजेडी. नंबर वन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन क्या होना चाहिए, तो एक्शन, सीरियस एक्शन. और मीडियम क्या होना चाहिए उसका, मीडियम शुड बी लैंग्वेज एम्बेलिश विद आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट. और मैनर क्या होना चाहिए, ड्रामेटिक. इज दिस क्लियर द नेचर ऑफ ट्रेजेडी? मजीद डिटेल आप उसको देख लीजिएगा हैंडआउट्स में. फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी क्या है, इट मीन्स दैट ट्रेजेडी अराउजेस द इमोशंस एंड पिटी एंड फियर एंड इट प्रोवाइड्स एन आउटलेट फॉर दीज एंड सिमिलर इमोशंस. अभी हाल ही में एक ड्रामा था, काफ़ी लोगों ने उसको देखा था, आई डोंट नो द नेम ऑफ द ड्रामा. उसमें जब आखिर में उसकी डेथ हो जाती है तो उससे भी काफ़ी लोग जो होते हैं वो, मतलब ये है कि दे हैव कैथारसिस एंड दैट ड्रामा बिकेम वेरी सक्सेसफुल. व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रामा? मेरे पास तुम हो. मेरे पास तुम हो. अब ये एक ड्रामा है जिसमें आखिर में जो मेन कैरेक्टर होता है हमायूं सईद, उसकी डेथ हो जाती है. एंड द पर्पस ऑफ दैट ड्रामा वाज टू रिवील और एक्सपोज समटाइम द कैरेक्टर ऑफ सच वुमेन. तो क्या है कि उस ड्रामे का भी एंड किस पे होता है, डेथ पर होता है. अगरचे ये उसके साथ इंजस्टिस, यानी कि उसके साथ सही नहीं होता, बट दिस इज लाइफ. इन लाइफ यू विल नॉट ऑलवेज फाइंड जस्टिस. याद रखिएगा, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल. अगर ज़िंदगी में सबके साथ इंसाफ होने लग जाए तो फिर ज़िंदगी तो फिर वो नहीं कहेंगे ना कि देयर इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब दैट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. यू विल फाइंड अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ एंड लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल. ह्यूमन बीइंग इज अनप्रिडिक्टेबल. इंसान भी अनप्रिडिक्टेबल है, लाइफ भी अनप्रिडिक्टेबल. यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन टू एनीवन एल्स एनी टाइम एनीवेयर. आपके साथ आपका दोस्त बैठा हुआ है, जैसे आपने पढ़ा होगा शेक्सपियर का एक प्ले जिसमें जो है वो इनवाइट करता है अपने दोस्तों को घर पे, और वो बड़े खुशी खुशी से आते हैं उनके घर में. उनको नहीं पता होता है कि ये जो इनका दोस्त इन्हें इनवाइट कर रहा है ये इनको खाने में जहर देकर मार देगा और बाद में उनको कत्ल कर देता है. सो वी नेवर नो व्हाट कैन हैपन टू अस एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज. सो लाइफ इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब. जिससे आप लाइफ के बारे में पूछेंगे वो आपको अलग ही डेफिनेशन देगा. क्यों देगा? whoever you ask about life, that person will define life according to his or her experience. And this is what we have in literature. Literature is the mirror of life. Literature is the mirror of society. Literature teaches us how to live, what to live, and teaches us about many things. Literature covers almost all areas: religion, social background, and good and bad, all the aspects. Why? Because all this literature is the mirror of society and these things are in the society. So the medium, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी. ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन क्या है, तो वो आपको भी बताया था कि स्टेज प्रेजेंटेशन इज ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन and you will find music and diction which form the medium of these presentation of action. Manner is indicated by the spectacle. Spectacle कहते हैं performance on the stage, and the objects of imitation are the other three: moral, bent, thought and plot. एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी क्या है, ये एलिमेंट्स है, इनको आप जहन में रख लीजिएगा. ठीक है, रिमेंबर यू हैव 25 मार्क्स इन द मिड टर्म, और वो जब आप दे देंगे तो आपके ये जो दो राइटर्स हैं इनसे आपकी काफ़ी हद तक जान छूट जाएगी. ठीक है, एंड यू हैव टू राइट शॉर्ट आंसर्स. आई विल नॉट गिव यू लॉन्ग क्वेश्चंस बिकॉज आई विल चेक योर कॉन्सेप्ट्स. प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल एंड मेलोडी, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी. ये 6 एलिमेंट्स है ट्रेजेडी की. And the most important among them is the first one, plot. The most important among them is the first one, plot. And it is Aristotle says that there can be a tragedy without characters but not without plot, and action comes in plot.
एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? इसके अलावा हवाले से कुछ पूछना है आप लोगों को? Unfortunately, only 12 students are attending this very important class. So elements of tragedy, and then what is plot? So as I told you that plot, according to Aristotle, is the soul of tragedy. Soul means the most important element of our tragedy. अगर प्लॉट सही नहीं होगा तो समझ ले पूरी ट्रेजेडी, पूरा प्ले, पूरा ड्रामा, पूरी मूवी खराब है. ठीक है. आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज ऐसी होती है. मूवीज के बारे में इसलिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मूवीज आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ड्रामास. मूवीज जो है ड्रामे की एक जदीद शक्ल है. So in 21st century, we have movies, and movies are the modern form of drama. So plot is the most important, thing. If the plot is not good, then you'll not find a play successful. Aristotle declares plot to be of supreme importance and the soul of tragedy, more important than the mere revelation of personal qualities. कैरेक्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थॉट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लॉट है. और प्लॉट बेसिकली होता क्या है? कौन इसको डिफाइन करेगा? व्हाट इज प्लॉट? यस, कम ऑन, व्हाट इज प्लॉट? टाइम इज वेरी शॉर्ट. इसके बाद हमारे पास दूसरा सेशन भी है. प्लॉट, यस. सो प्लॉट इज द sequence of a story. What is plot? Sequence of a story is called plot. Characterization is subsidiary since it only aids to the revelation of what is best revealed in action. Characterization है वो secondary है, subsidiary है, plot के बाद है. फिर क्या करें? Nor does a string of speeches finally work out provide the same tragic effect as a well constructed plot. So plot must be well constructed. अच्छी तरह से वो construct हुआ होना चाहिए. All the parts are essential to the perfect whole. The plot may have variety, but it should have a unity. Remember, according to Aristotle, according to Greek tragedy, the plot must have a unity of time, place and manner. आपने सुना होगा, ठीक है? Unity of time, place and action. Sorry. So the plot must have a unity, and it may have variety, but must have a unity. Every event should have logical connection with the rest of the action, and none of them should be irrelevant. According to Greek tragedy, that all the action should be related to each other. यानी कि अगर आप बीच में से कोई एक एक्शन देखना मिस कर देंगे तो आपको ऐसे लगे कि यार आप मतलब आपको समझ नहीं आएगा. फिर कोई एक्शन अगर आप बीच में से निकाल देंगे तो पूरा जो उसका तरतीब है, उसकी जो सीक्वेंस है वो खराब हो जाएगी. दिस इज समथिंग यू कैन नॉट फाइंड और यू विल नॉट फाइंड इन मोस्ट ऑफ मॉडर्न प्लेस. आज मॉडर्न जो प्लेस हैं उनमें आपको ये चीज़ें बहुत कम मिलेगी. अगर आप if you watch a play or any movie, so if you miss something, so it will not affect the play, and you will watch it easily and you will understand what's happening there. Remember, in Greek tragedy, according to Aristotle, it should affect the whole play if you miss any scene. So that is why he said that it should have a unity. फिर क्या कहता है? the unity of plot does not consist of the unity of the hero, it consists of the unity of action. Action means all the action should be well connected to each other. ये जो एक्शंस शो कर रहे हैं स्टेज पर वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए. ना हो कि कोई इररेलेवेंट एक्शन हो, जिस तरह आजकल के मॉडर्न प्लेस में आपको देखने को मिलेगा. बीच में बहुत से इररेलेवेंट चीजें आ जाती हैं जिसका which have nothing to do with the play or with the plot, or especially drama, but they are used over there. Why? Because they are they have made things commercial, और इसकी वजह से बहुत सारी गलत चीजें भी आ जाती हैं. The plot should be like an organic whole. ये याद रखिएगा, the plot should be like an organic whole. Organic whole means it should be a complete. If one part is removed, अगर उसमें से एक हिस्सा रिमूव किया जाता है, होल शुड बी डिस्टर्ब. तो तमाम जो भी सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब होना चाहिए. जैसे आपने कोई चीज आपने एक सीक्वेंस में रखी है, अगर आप बीच में से कुछ हटा देंगे तो पूरा गिर जाएगा. ठीक है. सो द प्लॉट शुड बी लाइक दिस अकॉर्डिंग टू Aristotle. The arrangement of incident is the plot, which I have already told you. So tragedy is possible without character but not without action. ये बात ध्यान में रखिएगा. According to Aristotle, tragedy possible without character, but it is not possible without action. Are you getting me? Tragedy is possible without character, but it's not possible without action.
एरिस्टोटल्स एक्शन मींस प्रोसेस नॉट एक्टिविटी। फिर एरिस्टोटल्स को सर यस सर अगर कैरेक्टर ही नहीं होगा तो एक्शन कैसे होगा? यही तो आपको समझाने का मतलब है कि कैरेक्टर से ज्यादा उसने कहा है कि प्लॉट अहम है। अगर आपके पास प्लॉट ही सही नहीं होगा, मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल जैसे दे रहे हैं कि आप किसी तालीमी इदारे में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने कहा तालीमी इदारे का सिस्टम सबसे अहम चीज़ है। बिल्डिंग्स वगैरह भले वो आपको बाहर हॉल में बैठा रहे हैं या बाहर फ्लैश में बैठा रहे हैं, अगर सिस्टम उनका अच्छा नहीं होगा तो वो सब फजूल है। अगर तालीमी इदारा बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, चेयर्स आर वेरी नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग, सिस्टम खराब है, तो क्या डू यू थिंक दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विल बी गुड? जाहिर है हम जब तक सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं आएंगे, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होगी और सब चीज़ें वैसे की वैसी रहेंगी। भले बिल्डिंग अच्छी हो, अंदर सब कुछ नीट एंड क्लीन हो, टेबल्स अच्छे हो और सारा कैंटीन अच्छी हो, बट if system is not good then nothing will be good. So here he says that sequence of the story is very important. किस सीन को कहाँ पर होना चाहिए और कौन सा सीन किस वक्त आपको कौन सा इफेक्ट आपके ऊपर डाल सकता है, लेसन किस तरह से कन्वे कर सकता है, वो सीन और वो सीक्वेंस और वो ऑर्डर जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसने कहा, मिसाल देने के लिए कहा कि कैरेक्टर के बगैर तो आप कर सकते हैं, लेकिन बगैर अच्छे प्लॉट की, यानी एक्शन की आप की ट्रेजेडी आपका प्ले जो वो कामयाब नहीं है। सो इट मींस दैट प्लॉट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैरेक्टर। प्लॉट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैरेक्टर। ने एक थोड़ा सा हाइपरबोलिक का इस्तेमाल किया, जैसे हम कहते हैं एक्सैजरेट किया है और मिसाल समझाने के लिए ये बात कही है। सो ट्रेजेडी इज पॉसिबल विदाउट कैरेक्टर बट नॉट विदाउट एक्शन। इट मींस दैट ट्रेजेडी करेक्ट action means plot sequence of the story is more important than character। फिर क्या कहते हैं एरिस्टोटल्स, एक्शन मींस प्रोसेस नॉट एक्टिविटी। एक्शन का मतलब वो कहता है प्रोसेस है, ये एक्टिविटी नहीं है। अ प्ले विदाउट एक्शन इन दिस सेंस वुड बी प्ले इन विच नथिंग हैपेंस, इन विच देयर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। अगर उसमें एक्शन नहीं होगा, मतलब उसमें प्रॉपर प्लॉट नहीं होगा, तो इट विल बी अ प्ले इन विच देयर इज नो नथिंग हैपनिंग, देयर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। इन मॉडर्न प्लेस आप बहुत से प्ले उठा कर देख लीजिएगा, उसमें आपको सिर्फ फजूल सी चीजें हरकत करते हुए नजर आ रहे होंगे, एंड यू विल फाइंड दैट दे आर जस्ट स्प्रेडिंग वल्गैरिटी, दे आर जस्ट स्प्रेडिंग ग्लैमरस थिंग्स। ठीक है, उसमें कोई लेसन नहीं है, कोई इसमें सबक आमोज चीज नहीं है। Why? Because there is no proper beginning and end. They have understood the mentality of their audience. So character without action will not achieve the end of tragedy. और फिर character बगैर एक्शन के, जब तक एक्शन अच्छा नहीं होगा तो वो भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। सो आई विल कंटिन्यू दिस आफ्टर 5 मिनट, राइट? तो अब जब तक आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप उसको जमा रखिएगा, इंशाल्लाह आई विल बी बैक आफ्टर 5 मिनट।